about change, I definitely would like to bring change in the media circle also, because that itself is a big tool of change. So media is itself required for change. So when we talk about media, I would like to ask the two people how you take media as what? As a just a glamorous profession, as a free thinking profession, as a very dreamy kind of thing which you want to achieve, or earning more and more money, or name, or fame. Can you say anybody what media is meant for? Basically, what is it meant for? Anybody can tell? Shruti would like to tell. Otherwise, it was led by terrestrial media called Doordarshan. Now, later on, we have a variety of television media. Since 2010, we saw the arrival of digital media in a big way. Digital media got highlighted in a big way, very big way. And then we have a arrival of social media. So there are several platforms like Facebook, like Instagram, like Twitter, like LinkedIn, etc. So now this social media and digital media, this come on a digital platform, has become one of the most prevalent mode of media. Talking about media, we say that everybody must have a right to expression. Everybody wants to say something about this, what he sees, what he beholds in this system. And when they want to express anything, earlier they used to write a letter to the editor of any newspapers. And very selected letter to editor were getting published at that time. But now this mobile screen has provided an opportunity. You can express anything about anything. They were not at the mercy of any government regulation. क्योंकि मीडिया पर्सन के लिए कोई आपको वर्क सिक्योरिटी नहीं, प्रोफेशनल सिक्योरिटी नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसका माई बाप नहीं। जबकि आप डेमोक्रेसी के ऑब्जर्वर हैं, वॉच डॉग हैं, आप पब्लिक की समस्याओं के सबसे बड़े सेंसिबल ऑर्गन हैं। आप जज भी जाएंगे तो आपके दीनहीन दशा को देख करके आपके पेपर में डिसीजन नहीं देगा, वो आपकी टेक्निकलिटी देखेगा तब डिसीजन देगा। एक एग्जीक्यूटिव बार बार कानून और नियम का हवाला देगा, एक लेजिस्लेचर बार बार अपने वोट बैंक का हवाला देगा, लेकिन यू विल हैव टू ऑलवेज बैड टू प्लीड फॉर द कॉमन पब्लिक। दिस इज द ओनली मीडिया। तो ऐसे में वह मीडिया जिसका कि कोई माँ बाप नहीं है, आप देखेंगे कि 50 और 60 के बीच में ज्यादातर मीडिया पर्सन जो है एक तरह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर इनको लार्जर पिक्चर में सोचेंगे, तो मैंने कहा कि मीडिया सेमिनारों में जो आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल और जुडिशियरी, इन तीनों के बारे में अलग अलग आर्टिकल में मेंशन है। हाउ दिस लेजिस्लेचर ऑपरेट, व्हाट द पार्लियामेंट विल हैव द राइट, और द स्टेट असेंबली विल हैव द राइट। लेटर ऑन द थर्ड टायर रिप्रेजेंटेटिव was inserted into constitution through 73 amendment. Then Panchayati Raj came. It has been also mentioned in the constitution. But the fourth pillar media, which we all belong, it doesn't have any writing in the constitution. We talk about democracy, but there is no writing about this media in the constitution. You can ask the question. There is one line that expresses this whole media and a whole fundamental right or primary fundamental right of the public, and that is the freedom of expression. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दिस इज नॉट स्पेशली फॉर मीडिया, दिस इज मेड फॉर ऑल 140 करोड़ सिटीजनरी ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये सबके लिए है कि आप किसी भी सरकार के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी संस्था के खिलाफ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन। लेकिन मीडिया जो इटसेल्फ, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जैसे कि हर 5 साल पर इलेक्शन होगा, जैसे कि एक इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट होंगे, जैसे कि रूल ऑफ लॉ होगा, कोई गवर्नेंस होगा वो सीधे राजा के आदेश पर नहीं होगा, उसका कानून बनाना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और रूल ऑफ लॉ जब होगा तो वो बजाबता लेजिस्लेचर में वो कानून बनेगा, फिर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको जुडिशियरी रिव्यू करेगी।
और उसका जहां जहां वायोलेशन होगा मीडिया जो उसको बताने का काम करेगी, मीडिया उसके बारे में मीडिया विल टेल अबाउट दिस। तो मीडिया का काम क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी कोई बड़े बड़े अमीर या बड़े बड़े धंधा सेठ या बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति या बड़े बड़े फकीर का जगह नहीं है। डेमोक्रेसी इज जस्ट ए प्रोसेस। उस प्रोसेस के तहत 4 खंभे बना दिए गए, चारों खंभा नहीं होगा तो ये छत नहीं खड़ी होगी। अगर ये खंभा नहीं हो तो 3 खंभे पर छत जो है यहाँ पर बंदरेबल होगी। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेक दिस मीडिया एज ए जेन्युइन फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी और आवर कंट्री। तो इन दैट वे अगर इस चौथे खंभे का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं हुआ, ऑलवेज ओनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर मेंशन, और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कहता है जो तमाम प्रिंसिपल मैंने बताए कि इसमें चेक एंड बैलेंस होता है। कोई आदमी इसमें ऑटोक्रेटिक नहीं होता। लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको गवर्न करेगा, एग्जीक्यूटिव गवर्न करेगा तो उसके खिलाफ लेजिस्लेचर में सवाल उठेगा। लेजिस्लेचर अगर गलत करेगा तो जुडिशरी सवाल उठाएगा, और ये तीनों गलत करेंगे तो मीडिया उसको चेक एंड बैलेंस करेगा। इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस डेमोक्रेसी के वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल है। लेकिन दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज जस्ट ओनली मियरली ए ट्रेडिशन। इट्स नॉट बाउंड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन। यू टॉक अबाउट एनी बिग डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएस, यूके, डिग्री ऑफ मीडिया which started from a daily newspaper, then converted into a periodicals, न्यूज होता था तो फिर उसमें फीचर आने लगा, फिर टेलीविजन का दौर आया, फिर 24 आवर टीवी चैनल का दौर आया, फिर डिजिटल सोशल प्रोपेगेंडा जो और आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ये जो पूरी जर्नी रही है, उस जर्नी में जब हम लोगों ने जब मैं IIT में जब इंटर हुआ 1990s में, तो हम लोग को ये बताया जाता था कि ये आपका प्रोफेशन बहुत रिस्की प्रोफेशन है। लेकिन एक दीवानगी थी, एक बिंदासपन था। हम इस करियर के जरिए जो है पूरा देश समाज को अपने हिसाब से सोचेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे और हम देश के एक इम्पोर्टेंट नागरिक बनेंगे। लेकिन फिर उसका जब लाइवलीहुड का मामला था तो कहा जाता था कि उनकी अर्निंग बड़ा ही कम है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है कि जिस चीज का टर्नओवर कम है तो उसके एम्प्लॉई को रिटर्न भी कम मिलता है, सैलरी भी कम मिलती है। सेम वे मीडिया इंडस्ट्री को अगर ग्रुप में हम लें, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को, तो ये बराबर हम लोग को भी कहा जाता था कि इसमें जो रिटर्न आता है वो कॉस्ट से कम आता है। जो एक न्यूज़पेपर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके सेलिंग प्राइस से कम से कम 10 गुना ज़्यादा होता है। तो दैट इज बीइंग इंटरनली मतलब कि फाइनेंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। तो ये सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से चली, तो सब चीज़ों का एक रास्ता निकाला गया। 2010 के बाद से जो ये डिजिटल मीडिया आया कि आपने देखा होगा कि वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जस्ट लेफ्ट देयर चैनल और दे वर रिमूव्ड अंडर सम पॉलिटिकल प्रेशर एंड दे जस्ट स्टार्टेड देयर ओन डिजिटल चैनल ऑन YouTube, taking their popularity and taking their identity and they utilize this for their own way। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ तो मीडिया है इट्स ओन इकोनॉमिक्स, और जो कि उसके एडवर्टीजमेंट, उसके सर्कुलेशन, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सबसे गाइड होता है। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि मेरी जो जर्नी है मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि आफ्टर पासिंग आउट IIMC आई ज्वाइंड सहारा ग्रुप। They have a very big media house and they started their TV channel also of late. And after that I joined Bhaskar Group. I worked here for 3 years and in both newspapers I was stationed in Bombay also as a bureau chief for some period. And after that I started my own magazine named Economy India. It was a bilingual magazine. और उसमें उस मैगजीन को स्टार्ट जब मैंने किया तो एक मीडिया एंटरप्रेन्योर और एक मीडिया पर्सन दोनों में मुझे काम करने का एक्सपीरियंस मिला, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट और उसके जो चैलेंजेस और उसकी जो आइडेंटिटी, तो व्हाट आई फाउंड कि हम लोग जिस चीज़ के पब्लिसिटी के टूल बनते हैं पहले हमारे अपने प्रोडक्ट की भी पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि हम ब्रांड, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे ब्रांड मैनेजमेंट करना, तो ब्रांड देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड RNI, रजिस्ट्रार there is one organization advertisement people may be known as DAVP, भारत सरकार के DAVP। फिर तीसरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि मीडिया एथिक्स को वॉच करती है। फिर चौथा है कि भारत सरकार की जितनी पब्लिसिटी होती है वो
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए जो स्टेट लेवल तक। तो PIB के जरिए और इन सब चीज़ों के जरिए ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिया को कैटर करते हैं, और लोकल मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके जरिए जो मीडिया का ये जो पूरा जो गवर्नमेंट का जो ग्रुप है, कि गवर्नमेंट के न्यूज को एज ए पब्लिसिटी उनके जो PRO थ्रू PIB जो डिमोनेट करते हैं, जिसको न्यूज़पेपर और चैनल्स और अलग अलग लोग जो है मीडिया को लेकर के 4 चीजें होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए मीडिया पॉलिसी, क्योंकि हर चीज के लिए एक पॉलिसी होती है, चाहे इंडस्ट्री की पॉलिसी बनती है, एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनती है, हर चीज की अलग पॉलिसी। तो मीडिया की भी पॉलिसी हो, मान लीजिए कि अगर सो कॉल्ड एंटी नेशनल है तो उसको हम बात कर सकें, सो कॉल्ड एंटी पीपुल है तो उसको बात कर सकें। तो देयर मस्ट बी ए मीडिया पॉलिसी। एंड सेकेंड, देयर मस्ट बी ए मीडिया कमीशन। यू मस्ट बी नोइंग दिस कि देयर इज ए लॉ कमीशन। वह लॉ कमीशन जो है ना तरह तरीके से जो रिकमेंड करता है ये लॉ बनना चाहिए, इस लॉ में ये खामी है, तो लॉ कमीशन जो है उसके लिए परमानेंट बॉडी है। बट देयर इज नो मीडिया कमीशन, देयर इज नो मीडिया पॉलिसी। आपको मैं बता दूं 60 और 70 में देयर यूज्ड टू बी ए प्रेस कमीशन 1 and 2, लेकिन उसके बाद nobody thought कि देयर मस्ट बी ए प्रेस कमीशन और मीडिया कमीशन इन न्यूज में, क्योंकि प्रेस हैज बिकम मीडिया नाउ। तो देयर इज नो मीडिया कमीशन एंड देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर मीडिया। आई एम टेलिंग यू वन एग्जाम्पल, इवन फॉर द कवरेज इन द पार्लियामेंट all media people have to make dharna because government is not allowing their passes. So because we do not have any constitutional status, so I think being a media people, you just express your opinion, and there is a campaign register for the signature of 1 lakh media person, media students, and that signature will be sent to President of India, Prime Minister of India. We just bring a new provision under the Constitution. The media should have also a constitutional status and a media commission and media policy, so that we media people have a big protector. We have a big aura and a respectable position in this democracy. So that is the matter which I presented before you, because you people are a young people, a student, and you have a raw mind, but you can nurture this idea in your mind. I think I have said all my points which I wanted to say. You all have, if you have any question, you can just raise your question, and if you give your consent for this signature, you can also allow to put your signature on this register, because so many media students have also done it. If you are interested, you can sign this and you start with your question. May I sit now and you just raise your question. Thank you very much. Thank you. We have a hotspot scenario. We are very unorganized. Media is not organized at all. Media doesn't have any. I can tell you, many people मतलब कि raise question in a very twisted manner. और मैं बता दूं, मेरे इस कॉल का अगर सबसे ज्यादा सवाल कोई करेगा तो अदर देन मीडिया नहीं, मीडिया के लोग ही करेंगे, क्योंकि उनको एक सवाल करने की बीमारी है। बात सुना, they can't think what is their in favor and what is their in against. जब वो एक मीडिया हाउस में काम करते हैं तो उनका दिमाग पर इस तरीके से सेटल्स बन जाता है कि वे ओनली थिंक इन देयर मतलब इन देयर ओन इकोसिस्टम। वो पूरे डेमोक्रेसी के इकोसिस्टम के आधार पर चीजों को नहीं देखते। दैट इज व्हाई देयर इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस कारण हरासत, लेकिन इट डजंट मीन कि हम वे वार्ड में कुछ भी लिखें, कुछ भी वो पटांग लिखें, वो अभी मुझे इनसेन लगता है, वो अभी लुनेटिक लगता है। वो अभी जो बनाए बियॉन्ड प्रपोर्शन, बिना प्रायोरिटी के कोई भी चीज लेकर जाए, दैट मस्ट बी ऑल्सो डन। मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर के हमारे मीडिया के लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरी कंपनी के मालिक के खिलाफ होगा। नो, अगर ये मीडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होगा तो जितने मीडिया ओनर है उनको भी एक अलग, उनको भी एक ग्रेसियस और ग्लोरियस उनको भी रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन ये है तो मीडिया का वो सेफ पैसेज में यूज नहीं करेंगे। और जब जहाँ तक मीडिया पर्सन की यूज की बात है तो कई बार, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक दिल्ली पे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, उनके मोहल्ले में बिजली बार बार कट गई। अब एक मोहल्ले के आधार पर उन्होंने पूरे दिल्ली के लिए
बिजली क्राइसिस की एक बड़ी न्यूज लगाई। ठीक है, अपने एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन आपके पास ये सेंस होना चाहिए कि रेशियो किसको क्या दें, प्रायोरिटी किसको क्या दें, ऑर्डर किसको क्या दें। कई बार हम कुछ न्यूज का कुछ ज़्यादा ही फॉलो अप करते हैं क्योंकि वो सेंसेशनल बन जाता है, और कई बार जरूरी चीज़ें जो घटित हो रही होती हैं उसको हम अंडरमाइन कर देते हैं, उसको हम फॉलो कर देते हैं। That is why I always keep reading about forming a new media policy, the new media commission, and new status, constitutional status for media. और रूलिंग regime को मीडिया के खिलाफ काम करती है, तब वो बड़ा एक हाइट टेकन वेल टेकन दिया जाता, लेकिन वहाँ पे वो अपने वेस्टेड फ्रस्ट्रेशन निकालने से बाहर नहीं आए क्योंकि ही इज अ वेरी बिग जर्नलिस्ट and he is a very big following, but he does a factual journalism. सेम वे अदर पीपल डू, जो कि सत्ताधारी दल के जो लगातार जो है धुन बजाते हैं, तो अलग अलग टेलीविजन चैनल है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट चैनल, लेकिन जैसे आपने पालकी शर्मा का नाम बताया, वैसे ही चैनल के रूप में और एक इंस्टीट्यूशन के रूप में 1980s, 90s and even in 2000 NDTV was a मतलब आई रेट एज द मोस्ट ग्लोरियस चैनल, जहाँ बहुत हाई स्टैंडर्ड थे न्यूज के। यह बात ठीक था कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी को और आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ज़्यादा ड्रम नहीं बजाते थे, और कुछ चीज़ें सरकार के वो थोड़े बियॉन्ड प्रपोर्शन कुछ क्रिटिक हुए जरूर, कुछ चीज़ें वो ले सकते थे, उतनी बैलेंसिंग नहीं कर पाए। अदरवाइज दैट फॉर द मोस्ट मतलब कि अपराइट चैनल माई माइंड, लेकिन वह भी विस्तृत हो गए और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो है। बट आई स्टिल हैव होप विद द प्रिंट मीडिया ऑफ द कंट्री. You read Times of India, you read some other newspaper also. So Hindu or Express, they are very famous for their hard-hitting news reports, but they have only 1 or 2 news reports on daily basis. But in general terms, अगर आप अपने को empowerment करना चाहते हैं, information में, knowledge में, perspective में, तो I think Times of India is a very good newspaper. लेकिन Times की print में वो तो real journalism करते हैं, लेकिन टेलीविजन जर्नलिज्म में उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रो इनकम्बेंट बन जाती है, प्रो गवर्नमेंट वो भी जो है हथौड़े बजाते हैं। उसी तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप में जब उनकी मैगजीन निकलती है तो ट्रू जर्नलिज्म करती है, लेकिन अब तो मैगजीन का दौर गया। जब टेलीविजन चैनल करते हैं तो वो प्रो इनकम्बेंट बन जाते हैं, लेकिन उनका डिजिटल चैनल relevanttalk.com मुझे लगता है ये डू फेयर कर रहे हैं, जो जिनको जैसा करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट इन्फोर्सिंग ओपिनियन, everybody has their own opinion, but on some measuring rod and some on ideal criteria, I can tell that the media has to follow such and such area to make our Indian democracy not only the largest democracy of the world, but also the best democracy of the world. And media has no doubt has the foremost role, even greater than and bigger than role of legislature, judiciary and executive. So if any question please raise, and if you want to be part of this campaign, just put your signature. The register is there, and you start signing on this register. You just write your name, signature, and write your registration of that. अदरवाइज ये सिर्फ हवा में चलेगा कि एडिटोरियल फील्ड बताएगा, या फिर जो है कुछ प्रेस क्लब बताएंगे, फिर जो है कुछ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बताएगा, और सरकार को जैसे मन होगा उस तरीके से डिक्टेट कर लेगी। दैट इज व्हाई वी नीड मीडिया कमीशन। No, but still media is a quasi-judicial body, right? It's a quasi-judicial body. It's not a proper judicial body. So even if you implement these things, how will it be implemented? Because again, you have to go back to the judiciary for the implementation. We can make them member of the legal aspect. The Federal Council of India का वो होता है तो and I think the media professional must be there. They must give their opinion and all kind of suggestions, so that we have a robust kind of things can happen in this media. उसी का नंबर लेके कर लगेगा व्हाट्सएप में करते हैं। और any question?